Assalamu alaikum, grade 7th. How are you all? I expect that you all are safe and sound and you all are doing good. Okay, grade 7, this is your new unit we are going to start, and this is your English lesson. And we'll be working with our unit number 7 today, with the first part of the unit number 7, that is winter poems. Okay, so before anything else, take out your English books and some pencils so you can note down the meanings, and let's start our working. So today we'll be doing the first part of the winter poems, that is on page number 36. And the first part of this winter poems is the first poem, that is stopping by the woods on a snowy evening, right? So yes, this one, let me zoom it out for you. This one poem, we'll be doing this one poem in this video. So this is poem stopping by the woods on a snowy evening, and before any explanation I'll read it out for you and you guys will be reading it with me. So place your fingers on the text and let's start reading. Winter poems 1. Stopping by the woods on a snowy evening. Those woods, these are, I think, I know. His horse is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay, students, so this poem is written by the very one of the most famous poets of the English literature, and and he is dealing with the natural scenario here. Natural scenario means कुदरत के बारे में एक नज़म है, right? So what is he discussing? He is discussing the nature of human beings, and the nature of nature the nature of basically the nature of this world, right? कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो शायर है उन्होंने ये पोएम इसीलिए लिखी है कि वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, जो हसीन नज़ारे हैं वो, और एक जो इंसान के दिल का अंदर का हाल होता है वो. ओके, तो let's come to the topic, that what it says. Winter poems are basically the winter poems. These both poems are winter poems. Why? Because both of these poems are about coldness, both of these poems are about snow, and both are these poems are about nature. ठीक है, इसीलिए इनको विंटर पोएम कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको ठंडी ठंडी चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस गर्मी में, एंड दो ठंडी चीज़ें आर बर्फ़. ठीक है, और ठंडा मौसम जो होता है या जो ठंडे नज़ारे जो होते हैं उनके बारे में, इसीलिए इनको विंटर पोएम्स कहा गया है. स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. स्टॉपिंग बाय द वुड्स, जंगल में रुकना. वुड्स, जंगल. ओके, सो स्टॉपिंग, जंगल में रुकना. ऑन अ स्नोई इवनिंग. स्नोई इवनिंग यानी एक ऐसी शाम जबकि बर्फ़बारी हो रही हो. स्नोई मीन्स बर्फ़ से ढकी हुई, तो बर्फ़ से ढकी हुई शाम. तो द टॉपिक सेज दैट दिस इज़ द इवनिंग वेयर द स्नो इज़ फॉलिंग and everything is covered in snow, and here the poet is standing in the middle of a jungle. Okay, whose woods are these? I think I know. Whose woods, किसके जंगलात हैं ये, किसके दरख्त हैं? These are,
आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये किसके हैं, ये जो जंगल है इतना प्यारा सा, ठीक है। तो वो कहता है वो मुझे लगता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये इतना प्यारा सा जंगल, ये दरख्त, ये सब किसके हैं, शायद मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, वो जिसके भी हैं, जिस मालिक के हैं, उसका घर, हिज हाउस, उसका घर, इज़ इन द विलेज, वो है गांव में, दो, स्टिल, ठीक है उसकी, ये जंगल उसी का है, ये वुड्स, ये दरख्त, ये सारा एरिया जो है, इट बिलोंग्स टू द ओनर, बट द ओनर लिव्स इन अ jungle. Okay, no, the owner lives in the village. Okay, he will not see me stopping here, he will not see me stopping here. अब यहाँ पे जो he his लगा रहे हैं, ये ओनर के लिए लगा रहे हैं, जो वुड्स का जो ओनर है, जिसके जो ये, जिसके जंगलात हैं ये, या जिसका जो ये एरिया है, तो ही विल नॉट सी मी, तो वुड्स का जो ओनर है वो मुझे नहीं देख पाएगा, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा या वो मुझे नहीं देख सकता, स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, हेयर यहाँ पे, स्टॉपिंग मीन्स रुका हुआ, ओके। तो ही विल नॉट सी मी हेयर टू वॉच हिज वुड्स fill up with snow. Stopping here, and what I'm doing, I'm stopping here in the woods, I'm watching these jungles, or I'm watching these trees and woods which are gradually filling with snow. वो जो ओनर है इन जंगलों का, वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे रुक के क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रुक के खड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द वुड्स, इन जंगलों को, इन ट्रीज़ को, इन दरख्तों को, फिल अप, भरते हुए, विद स्नो, बर्फ़ के साथ, ठीक है। तो वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टॉप्ड हूँ मैं यहाँ पे, और मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इन सारे वुड्स को, इन जंगलों को, कि ये फिल अप हो रहे हैं, ये भरे जा रहे हैं बर्फ़ से, क्योंकि क्या हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, ओके। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। नाउ दिस ही, यहाँ पे जो ही लगा है वो घोड़े के लिए लगा है, ठीक है। घोड़ा कौन है, सो देयर इज़ अ हॉर्स विद दिस मैन, ये जो पोएट है जो कि ये पोएम को बयान कर रहा है, ही इज़ हैविंग अ हॉर्स। तो अभी सेकंड स्टैंजा में ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स के बारे में ही बात कर रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो देता है, ही गिव्स अ शेक, एक झटका, हिज हार्नेस बेल्स, अपने हार्नेस के बेल्स को, हार्नेस वो जो घोड़ों के साथ जो पट्टे और वो जो रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं। सो बेसिकली जो आपने घोड़े या गधे देखे हों और उसका ओनर कोई इंसान हो, तो आप देखते हैं कि उनके गले के गिर्द, उनकी नाक में और उनके मुंह में पट्टियाँ बंधी होती हैं, ठीक है। और उर्दू में इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, शायद इसको जीन कहते हैं, बट इट इज़ अ शायद, बिग शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो इट इज़ जीन बेसिकली, और इट मे नॉट बी, बट येस आई थिंक इट इज़, इट्स ओके। सो वो जो पट्टी होती है उसको हार्नेस कहते हैं। तो समटाइम्स यू सी उस हार्नेस के साथ द बेल्स आर अटैच्ड, उस पर घंटियाँ लगी होती हैं, अटैच्ड होती हैं। नाल, यस, घोड़े की जो नाल होती है, इट इज़ कॉल्ड नाल इन उर्दू, आई रिमेंबर। सो वो जो घोड़े की नाल होती है, और नाल की रस्सी के साथ जो होता है, अक्सर बेल्स लगे हुए होते हैं, तो वो जब घोड़े जो है अपना सर हिलाते हैं या शेक करते हैं, सो बेसिकली दे आर गिविंग अ वेकअप कॉल, वो अपने जो ओनर है या इधर उधर की जितने भी मखलूक़ात उसके आसपास खड़ी हूँ, उनको ज़रा सा सिग्नल देने के लिए वो इसको इस तरह से हिलाता है, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड हार्नेस बेल्स। नाल के साथ जो घंटियाँ लटकी होती हैं घोड़ों के, उसको हार्नेस बेल्स कहते हैं। तो दिस पोएट is standing in the middle of a jungle, and there is falling snow, and in the second stanza the horse gives a shake to his harness bells. Why? Because he want to give a wake up call to his owner, that what is happening, why are you standing here,
to ask if there is some mistake. Why he is shaking his bells, the horse? Why the horse is shaking his bells? Because he want to ask his owner that if everything is good or not. क्या कोई गलती तो नहीं होगी कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, यहाँ पे खाली सी जगह है, कुछ नहीं है यहाँ पे, why are we standing here, right? So he is trying to ask his master that what is happening or why are we standing here, okay? इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, या हम भूल के खड़े हो गए हैं, क्या हम रास्ता भूल गए हैं, और इफ़ वी आर व्हाट आर वी डूइंग हियर, द हॉर्स इज़ कंफ्यूज्ड, ओके. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड. So other than this sound of the bells, there is another sound in that woods, in that jungle. That is the sound of sweeping wind. Sweeping wind means sweeping means a forceful, ज़ोरदार, ठीक है, बहुत ही तेज़. ऑफ ईजी विंड, खुली हवा की जो ज़ोरदार आवाज़ होती है. I hope you have noticed the sound of wind when there is जब भी खुली हवा चलती है और बहुत तेज़ चलती है, so there are sounds of the wind, and कुछ ऐसे ज़ ज़ू ज़ू करके कुछ इस तरह सी आवाज़ें आती हैं. And the poet right now is talking about that wind, that sweeping wind, वो जो तेज़ हवा होती है. easy means easy wind यहाँ पे है खुली हवा, and sweep means forceful, a very strong wind. and wind is चलती हुई हवा जो होती है. air और wind में फ़र्क होता है. air is basically हवा, wind is चलती हुई हवा, right? so इसी जंगल में हॉर्स की बेल्स के आवाज़ के अलावा यहाँ पे चलती हुई तेज़ हवा की, खुली हवा की आवाज़ें भी आ रही हैं. द ओनली अदर साउंड, सिर्फ ये दो आवाज़ें हैं, ओके. एंड डॉनी फ्लेक. डॉनी फ्लेक मीन्स सॉफ्ट फ्लेक, ठीक है. डॉनी बेसिकली मीन्स सॉफ्ट और कॉटनी, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट हो या कॉटन जैसा हो. फ्लेक मीन्स टुकड़ा, ओके. फ्लेक इज़ बेसिकली द फ्लैटेंड पीस ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का एक, जब आप उसको फ्लैट कर दें और उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें, सो इट इज़ कॉल्ड अ फ्लेक. जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, राइट. सो द स्नो ऑल्सो हैज़ फ्लेक्स, राइट. सो द ओनली साउंड इज़ ऑफ द विंड and is of the bells of the horse, and there are sounds of the falling snow. falling snow के लिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं. डॉनी फ्लेक, डॉनी मतलब कॉटन के जैसा जो फ्लेक है, कॉटन के जैसा जो टुकड़ा है. फ्लेक इज़ टुकड़ा, एंड डॉनी मीन्स वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट टुकड़ों की आवाज़ें हैं. सो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द साउंड ऑफ फॉलिंग स्नो. बर्फ़ जो गिरती है, वो जो हल्की हल्की आवाज़ होती है बर्फ़ की गिरने की. यू मे नॉट हैव नोटिस्ड दिस साउंड बिकॉज इट इज़ नॉट दैट कॉमन, बट whoever who has traveled in the winter to a snowy area, अगर आप मरी या कलाम वगैरह ठंड में जाएं और वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ साउंड टू नोटिस. वहाँ पे आप इस ऐसी आवाज़ों को बहुत क्लियरली नोटिस कर सकते हैं. So basically we get an image from this stanza that what is happening. So the image is there is a man who is standing in the middle of the jungle, and snow is falling, and there is one horse who is making sounds by his bells, and the wind is very harsh, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, and other than this there is nothing else there. इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है. Coming to the third stanza, my little horse must think it queer. My little horse. Now the poet is directly talking about his horse. यहाँ पे अब poet जो है वो directly अपने horse के बारे में बात कर रहा है कि मेरा छोटा घोड़ा, my little horse must think, उसको लगता होगा, he must be thinking, वो ये सोचता होगा, it queer, वो हैरानगी हो रही होगी उसे, ठीक है. he must be thinking and he must be confused with his thoughts, okay. queer means strange,
अजीब लगना, हैरान होना। तो वो ये कहता है कि मेरा घोड़ा जो है वो ऑलरेडी अपनी बेल्स को शेक कर रहा है, हिला रहा है, उनको आवाज़ें निकाल रहा है अपने बेल्स के ज़रिए कि ये यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हम यहाँ पे खड़े हैं। तो वो कंफ्यूज हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि मेरे ओनर को क्या हो गया है। यूजुअली द हॉर्सेज आर यूज टू ट्रैवल, बिना बात के कोई जंगल में खड़ा नहीं होता। तो वो हॉर्स भी सोच रहा होगा कि ये जो मेरा ओनर है, ये जो पोएट है, वाई ही स्टैंडिंग, सो इट द सिचुएशन मस्ट बी स्ट्रेंज फॉर हिम एंड ही विल बी थिंकिंग अबाउट स्ट्रेंज थाट्स। उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे होंगे, वो हैरान हो रहा होगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, वो सोच रहा होगा कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं विदाउट अ फार्म हाउस, कि यहाँ पे आसपास रहने की कोई जगह तो नहीं है। फार्म हाउस इज़ बेसिकली अ स्मॉल शेल्टर और अ स्मॉल होम वेयर पीपल कैन स्टे। एंड फार्म हाउसेज जो होते हैं वो सिटी में नहीं बनते, वो सिटीज़ के बाहर बनते हैं, गाँव के एरिया में या खाली जगहों पे। तो ऐसे जो घर होते हैं जो कि बाहर बनते हैं, गांव में बनते हैं या खाली जगहों पे बनते हैं, और वो आराम करने के लिए लोग जहाँ पे जाएं, दैट इज़ कॉल्ड अ फार्म हाउस। सो द हॉर्स मस्ट बी थिंकिंग दैट वी आर स्टॉप्ड हेयर, हम यहाँ पे खड़े हैं, बट देयर इज़ नो फार्म हाउस, यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस नहीं है जहाँ पे हम रुक सकें। नियर यानी आसपास। तो वो हॉर्स सोचता होगा जब यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है आसपास में, करीब में, नियरली, सो वाई वी आर स्टॉपिंग हेयर, okay, between the woods and frozen lake. Now the horse is thinking that we are standing in the middle of the frozen jungle. Frozen lake means जमी हुई नदियाँ, ठीक है। So the horse must be thinking that why we are standing in the middle of a jungle, इन दरख्तों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे पानी तक नहीं है, बिकॉज द लेक, वो जो नदियाँ है, दैट इज़ फ्रोज़न, वो जमी हुई है बर्फ़ से। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और वो सोचता है कि पूरे साल की जो सबसे काली शाम है, ठीक है। सो वाई वी आर हियर, ओके, बिकॉज यूजुअली विंटर इवनिंग्स आर डार्कर। समर और विंटर को आप जब कंपेयर करें तो समर में जो शामें होती हैं वो लंबी होती हैं और शाम को तकरीबन 7:30 बजे तक धूप रहती है, रोशनी होती है। लेकिन जब आप विंटर में जाएं तो विंटर में होता है कि इट विल बी 5 o'clock, शाम के 5 बज रहे होंगे और बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो गया जैसे 7:30 बज रहे हो या 8 बज रहे हो, राइट। सो डेफिनेटली विंटर कंप्राइजेज ऑफ द मोस्ट डार्क इवनिंग ऑफ द ईयर, कि वो विंटर में जो होता है वो साल की सबसे गहरी काली शामें होती हैं, ओके, बिकॉज विंटर में अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो द हॉर्स, नाउ दिस थर्ड स्टैंजा इज अबाउट द थिंकिंग ऑफ द हॉर्स, दैट व्हाट विल बी द हॉर्स बी थिंकिंग अबाउट द ओनर, की जो हॉर्स का ओनर है उसको कैसा लग रहा होगा कि वाई वी आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ जंगल where there is no house to stay, where there is no water, and if there is a water it is freezed, and even it's the most dark evening of the year, पूरे साल की सबसे काली शाम है ये, पानी भी नहीं है आसपास, जो नदियाँ है वो जमी हुई है, रहने की जगह भी नहीं है कोई, there is no farm house, and it is snowing, बर्फ़ हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है। So why are we here? Coming to the fourth stanza, the woods are lovely, dark and deep. Now the poet is appreciating the nature. जो कुदरत का ये जो हसीन नज़ारा है, पोइट शायर जो है, ये जो नज़म लिखने वाला है, वो उसको उसकी तारीफ़ करता है कि ये जो जंगल है, the woods are lovely, बहुत प्यारा है, dark यानी इसमें अच्छा खासा अंधेरा है। डार्क का मतलब बेसिकली होता है पीसफुल, right? So he is thinking that these woods are very lovely, they are beautiful, they are very peaceful, they are very dark and deep. Deep means घना, ये जो जंगल है ये बहुत घना है, ठीक है। So he might be liking these woods and these snow. Now there are some people who do not like
all of this, and all they want is a good house and they want some facilities. But there are some people like me who love to be in the closeness of nature, जो कि कुदरत के करीब रहना चाहते हैं. ऐसे लोग फिर इन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. वो कहते हैं, जैसे इस पोइट ने कहा है कि ये जो जंगल है, द वुड्स आर लवली, बहुत प्यारा है. इट इज़ ब्यूटिफुल. डार्क मीन्स बहुत पीसफुल है, यहाँ पे अंधेरा है. एंड डीप मीन्स बहुत ही घना जंगल है ये, राइट. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. अब यहाँ पे पोइट जो है वो इंसानों की असलियत पे आ जाता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकता. वाई? बिकॉज ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप. वो अपने वादों पर कायम रहना चाहता है. कौन से वादे? वो वादे जो कि इंसान अपनी कम्युनिटी के साथ करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, देन आई एम प्रोमिसिंग माई फैमिली दैट आई विल कम बैक, राइट, कि मैं वापस आऊँगा, मैं तुम लोग के साथ रहूँगा. एंड द कमिटमेंट्स, मैं अपने बच्चों को पालूँगा, मैं अपना घर का ख्याल रखूँगा, मैं औरों का भी ख्याल रखूँगा, मैं अपनी जॉब पे जाऊँगा, and things like that. So these are all the promises which each and every human being does, जो कि हर एक इंसान करता है. ये ऐसे वादे होते हैं जो कि हम बोल के नहीं करते, लेकिन ये हो जाते हैं वक्त के साथ. जैसे अपने घर का ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, काम करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इल्म हासिल करना. So these are all the promises. So now the poet is saying that yes, this place is very very pretty, but now I cannot stay here. Why? Because I have done many promises with myself, with the society, which I have to keep. जिन वादों को मैंने पूरा करना है. So, and miles to go before I sleep. Therefore, I have to go from here, and I have to cover miles before I sleep. यानी सोने से पहले मैं यहाँ पे सो भी नहीं सकता, because I have to leave this place and I have to travel miles, क्योंकि मुझे मीलों का सफ़र तय करना है अभी, और मुझे जाना है सोने से पहले, मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैंने लोगों के साथ, मैंने अपने आप के साथ और अपने मुआशरे के साथ मैंने वादे किए हैं, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा. एंड द लास्ट लाइन इज़ रिपीटेड अगेन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और मुझे मीलों का सफ़र तय करना है सोने से पहले. ओके, सो दैट्स इट, ग्रेड 7. एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. अगर कल को कोई लिटरेचर ऑप्ट करना चाहता है इंग्लिश में, तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोएम टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू. और इवन आपकी बोर्ड की एक बुक है, आई डोंट नो विच वन ग्रेड बुक इट इज़, लेकिन आई थिंक ये बोर्ड की किसी भी बुक में आई थिंक है. ये आपकी अभी से आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग मैंने इसीलिए की क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी बोर्ड की बुक्स में ये मिल जाएगी ये पोएम. सो यू कैन डील विद दैट पोएम इजीली, क्योंकि अभी आपको अभी से ही समझ आ गई होगी. सो ग्रेड 7, कमिंग टू द वर्ड मीनिंग्स. वुड्स, ट्रीज, जंगल. वुड्स बेसिकली दरख्तों को कहते हैं, बट जंगल जो होते हैं उनको भी वुड्स कहते हैं. दो, स्टिल, अभी भी. हार्नेस, अ स्ट्रैप टाइड टू एनिमल्स. वो रस्सी जो कि एनिमल्स को एनिमल्स के उनके जो मुंह है उसके आसपास बांधी जाती है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके. उर्दू में इसको शायद नाल शायद नहीं, इसको उर्दू में नाल कहते हैं. ठीक है. शेक, मूव, हिलाना. मिस्टेक, रॉन्ग, गलती. स्वीप, फोर्सफुल, बहुत ही तेज़. ईजी, ओपन. यहाँ पे इजी का जो मतलब है वो आसान नहीं है. अच्छा, इस पोएम में इजी का मतलब है खुली हवा. ठीक है. डॉनी, सॉफ्ट, कॉटनी, बहुत ही नरम जो होता है. फ्लेक, बिट, टुकड़ा. क्वियर, स्ट्रेंज, अजीब, हैरान कुन. फार्म हाउस, अ स्मॉल हाउस फार फ्रॉम द सिटी. एक छोटा सा घर जो कि शहरों से दूर बनाया गया हो आराम के लिए. फ्रोज़न, फ्रीज्ड, जमा हुआ. डार्केस्ट, मोस्ट डार्क, ब्लैकिश, जो सबसे काली जो होती है, बहुत ज़्यादा जिसका कलर बहुत तेज़ हो. डीप, शेयर, रिच, यानी बहुत ही घना, राइट, या बहुत ही गहरा. That's it, grade 7. I hope you enjoyed. Till the next while lesson, take care of yourself, take care of your family. Please don't go out and make sentences. Make 5 sentences out of these word meanings. ये जो word meanings हैं इनमें से किसी भी 5 words के आप sentences बना लो.
And that's it. Take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, wash your hands properly, and stay safe. Allah Hafiz, grade 7.